The topic for today's class is classification and complications of fractures. The class is made by my professor. He asked me to present it to you. Fracture classifications. Why classify a fracture? Uh, as a treatment guide, it is to assist with prognosis, to speak a common language with others in order to compare results. If if the same bone is broken, the surgeon can use a standard treatment. Uh, Problem is fracture personality and variation with equipment and experience. Variation and each fracture personality is different, and there is variation in each and every case. No case is the same. Uh, we classify a fracture to assist with prognosis. You can tell the patient what to expect when he comes to the OR or the OPD. Uh, the problem is it does not consider soft tissues or other compounding factors which are an immediate risk to a patient. It is to speak a common language. This will allow for results to be compared. Poor inter-observer reliability with existing fracture classifications is the problem. We don't know which classification to use, and everyone uses a different classification in their which they have been asked to use. Closed fractures, fractures that are not exposed to the environment. Ajo. All fractures have some degree of soft tissue injury. They are commonly classified by the Cherna classification. Don't underestimate the soft tissue injury as this affects the treatment injury and the outcome. Closed fracture considerations. Uh, 4 or 5 factors are considered in closed fractures. One of them is the energy of the injury, by which energy the trauma occurred. It can be an RT, it can be a simple fall. The degree of contamination. There can be a small puncture wound. Even if there is a small puncture wound, it is an open fracture. So a closed fracture is there should be no opening that is visible to the observer. So the degree of contamination means how much of the fracture site or the area has been contaminated. It does not happen necessarily in closed fractures. Patient factors is if the patient is obese, it obviously reduces the outcome of the surgery. If the patient has diabetes or any other existing comorbidities such as hypertension or the history of stroke, so that does affect fracture outcomes. Any additional injuries such as nerve injuries, vessel injuries, or tendon injuries. Open fractures, they are defined as a break in the skin and over underlying soft tissue leading directly to leading directing into और कम्युनिकेटिंग विद द फ्रैक्चर. जो भी है कि जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में ब्रेक हो जाता है, तो जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है उससे अपने को एक कम्युनिकेशन का बैरियर मिल जाता है. तो दैट इज ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर्स. तो दे आर classified by the Gustillo-Anderson classification. The base model for the classification is tibia fractures. It can be routinely applied to all type of open fractures. Gustillo emphasizes on skin size of skin injury, how big the wound is. Gustillo-Anderson classification is used for prognosis, fracture healing, infection, and amputation rate. It correlates with the degree of soft tissue injury. Fracture should be classified in the operating room at the time of initial debridement. We should evaluate the periosteal stripping. Periosteal stripping is जो bone के ऊपर part होता है अपना, मतलब जो bone का ऊपर सफेद सफेद होता है वो strip हो जाता है. और consider soft tissue injury in the OR. There are 3 types of Gustillo-Anderson classifications. Type 1 open fractures are inside out injury. The wound is clean, there is minimal soft tissue damage and no significant periosteal stripping. This can be a open fracture as well as a closed fracture, but in this fracture there is a significant chance of damage to the brachial artery. So that has to be remembered. This is a supracondylar humerus fracture. In type 2 open fractures, there is moderate soft tissue damage. Outside in mechanism of fracture occurs, higher energy injury,
there is some necrotic muscle and there might be some periosteal stripping. This is a fracture of the distal shaft of the tibia, and there can be involvement of the articular joints as well. Type 3 open fractures. Type 3 is divided into three classes, A, B, and C. Type 3A is high energy injury, outside in injury, which is similar to type 2 injury. There is extensive muscle devitalization, which means that the muscle does not receive oxygen. Jaldi. The muscle does not receive oxygen adequately, which leads to necrosis of the muscle. So this type of injury is an emergency. There is no extensive bone coverage with existing soft tissue not problematic. The bone coverage is there. We can see a significant amount of open wound, but the bone coverage is there. In type 3B open fractures, it is high energy, outside in injury, same. There is extensive muscle devitalization. It after fixing the fracture, fixating the fracture, we cannot actually operate this type of fracture immediately. We have to fix it with an external fixator. We have to provide stability to the patient's limb in order for the fragments to actually come close. And then the soft tissue that has been injured has to be surgically repaired with a free flap or a flap for bone coverage. Because only then we can stop the necrosis that occurs. So it requires a local flap or free flap for bone coverage and soft tissue closure. There is periosteal stripping. And type 3C open fractures, it is high energy. There is increased risk of amputation and infection. A major vascular injury requiring repair may occur. OTA classification is the gold standard classification. There has been a need for an organized systematic fracture classification. It is a comprehensive classification adaptable to the entire skeletal system. It is the gold standard classification, but the Gustillo-Anderson classification, which you just saw, is asked the most and which is used the most. So, proximal and distal segment fractures. Proximal is, let's consider this as the center of your body. Any fracture which is defined as proximal, which means it is closer to the center of the body. Distal would be, this fracture would be distal of the radius. This fracture would be proximal. This fracture would be distal of the humerus. This fracture would be proximal. This fracture would be distal of the femur. This fracture would be proximal. So, there are three types of proximal and distal segment fractures that they are classified as three types. Type A is extra articular. Articular समझ आता है? Joints. Articular जहाँ पे भी होता है, it means joints. So extra articular means away from the joints. The fracture does not involve any of the joints. Type B is partially involving the joints, and type C is completely disruption of the articular surface from the diaphysis. Diaphyseal fractures. बोन के तीन पार्ट होते हैं, एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है, एक बीच का होता है. तो upper and lower part is called as the metaphysis, and the middle part is called is the diaphysis. So diaphysis means जो shaft के आपके fractures होते हैं, that involve the diaphysis. Okay. So type A is simple fracture with two fragments. Type B can be wedge fractures, which after they are reduced, the length and alignment is restored. And type C is complex fractures with many fragments. The length and alignment is restored after a long period, and it is only restored with an Irizarry fixator. वैसे we have to fix the fracture first. ऐसे इस fracture में कुछ भी आप ना plate कर सकते हो, ना आप nail कर सकते हो. This third type of fracture में. तो we have to fix the fracture first. उसके बाद जितनी bone पास में आएगी, we have to plan accordingly. Bone मतलब ये भी थोड़ा बहुत heal कर जाता है,
और आपको पहले फिक्स करना होता है ट्रैक्शन में, बोन को अपने जगह पे लाके फिक्स करना होता है विद एन एक्सटर्नल फिक्सेटर और रॉड। इंटरनली हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले ही इतना इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। अगर हम इंटरनली कोई प्लेट या फिर कोई भी रॉड लगा दे, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया देन द एंटायर लिम्ब इज इन्फेक्टेड फॉर लाइफ। टाइप ए विद फ्रैक्चर्स विद टू फ्रैगमेंट्स, इनकी ग्रुपिंग में तीन टाइप होते हैं, स्पाइरल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। तो तीनों का आउटकम ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। ट्रांसवर्स ही सबसे मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रैगमेंट ऐसे पड़े होते हैं, तो उनको अपनी जगह पे रिड्यूस करना मुश्किल होता है। स्पाइरल में आ जाता है, ऑब्लिक में आ जाता है। अब टाइप बी में स्पाइरल वेज, बेंडिंग वेज एंड फ्रैगमेंटेड वेज। तो इन तीनों फ्रैक्चर्स में यू हैव टू अचीव अ रिडक्शन फर्स्ट। अ रिडक्शन हैज टू बी अचीव्ड बाय ट्रैक्शन और कैन बी अचीव्ड बाय इंस्ट्रूमेंट सच एज। तो तीन टाइप के टाइप बी फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स होते हैं। दे आर स्पाइरल वेज, बेंडिंग वेज और फ्रैगमेंटेड वेज। इस पे इतना छोड़ो इसको। और टाइप सी में भी ये स्पाइरल, मल्टी फ्रैगमेंटरी वेज, सेगमेंटल और इरेगुलर। ये पूछते हैं क्या ये सब? ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स ये पूछते हैं हर एक क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी फ्रैक्चर का क्वेश्चन आएगा तो ये पार्ट तो आपको लिखना ही है, कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आप ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखो तो सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनर को, जो भी आपकी कॉपीज करेक्ट करता है, अगर आप टैबुलर वे में अपना आंसर लिखो और पॉइंट वाइज कंसाइज वे में अपना आंसर लिखो तो उससे अच्छा उसको कुछ नहीं लगता, क्योंकि नो वन हैज द टाइम टू गो थ्रू 250 कॉपीज। वो एक कॉपी में आपको आप पूरा भी अपना रगड़ के लिख दो पूरा 3 घंटा लगा के, एग्जामिनर 2 मिनट ही देखेगा आपकी कॉपी। तो जो आपको दिखाना चाह रहे हो एग्जामिनर को, वो आप अच्छे से हाईलाइट करके दिखाओ। तो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स they can be classified into two: general and local. Local are early complications and late complications. So early complications in general complications में early complications, शॉक। सबसे पहले आपको, अगर लेट्स इमेजिन आपके पास एक पेशेंट ईआर में आता है विद एन ओपन फ्रैक्चर, विद अ शाफ्ट फीमर फ्रैक्चर। अब मैं आपको ये बता दूं, ऑर्थो में जो हमें सिखाया गया है, ऑर्थो में एक ही इमरजेंसी है, इमरजेंसी वाला फ्रैक्चर है जो आपको, दैट यू हैव टू लुक एट इट एज एन इमरजेंसी, दैट इज द फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। फीमर में भी स्पेसिफिकली द शाफ्ट, क्योंकि अगर आपको कोई भी शाफ्ट फीमर का फ्रैक्चर दिखता है तो यू हैव टू अस्यूम दैट द ब्लड लॉस दैट ही हैज बीन थ्रू इज 1.5 to 2 लीटर्स। और मेरे को इतना नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है एग्जैक्टली अभी, पर 1.5 to 2 लीटर्स बहुत होता है ब्लड लॉस। तो वो इस चीज की वजह से शॉक में चले जाता है। शॉक में चले जाता है तो आपको पहले, सबसे पहले उसके मॉनिटर्स, वाइटल्स वगैरह तो इमरजेंसी में देख ही लेते हैं, बट यू हैव टू मॉनिटर देम क्लोजली कि उसका सैचुरेशन डिक्रीज होता है, उसके बीपी या फिर पल्स में फ्लक्चुएशन आना, तो ये चीज़ आपको देखनी है। और फिर उसका जो जीसीएस स्टेटस है कि वो सेडेटेड है, ड्राउजी है, कैसा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म क्या होता है, पता है किसी को? आप कौन से ईयर में हो आप लोग? फाइनल में? एक तो बता सकता है कोई फैट एम्बोलिज्म मेरे को? फैट एम्बोलिज्म सिंपल है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म क्या होता है? Embolism is dislodgement of something in a vessel. That is a embolism. So dislodgement of fat in the vessels is fat embolism. जो मसल और फैट का ब्रेकडाउन होता है जब फ्रैक्चर होता है इतना बड़ा आपको, तो वो जाके फैट आपको डिसलॉज हो जाता है इन योर वेसल्स, विच अगेन लीड्स टू सीएनएस डिप्रेशन, सैचुरेशन डिक्रीज, ड्राउजीनेस। तो इमरजेंसी में इसका जो मैनेजमेंट है दैट इज एन इंजेक्शन ऑफ अ स्टेरॉइड, जो कि डायलेट कराता है ना स्टेरॉइड, तो दैट विल डायलेट द ब्लड वेसल्स जिसमें फैट इजीली पास हो पाए, ऑक्लूड ना करे। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म तीसरा।
क्रश सिंड्रोम, पता नहीं, मल्टी ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, टेटनस, गैस गैंग्रीन। तो इसकी ये देख लेना यार, मैं पढ़ के नहीं आया था। और लोकल कॉम्प्लिकेशंस में विसरल इंजरी, द लंग, द ब्लैडर, द यूरेथ्रा और द रेक्टम, ये ऑर्गन्स अगर इंजर हो रहे हैं तो फिर वैस्कुलर इंजरी, वैस्कुलर इंजरी मीन्स इंजरी टू द आर्टरीज और द वेन्स, नर्व इंजरी मीन्स इंजरी टू द नर्व, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम पक्का क्वेश्चन आता है यार, एक बता दो मेरे को, आता है किसी को, मतलब समझ आता है? हीमार्थ्रोसिस, इन्फेक्शन, गैस गैंग्रीन, फ्रैक्चर, ब्लिस्टर्स एंड प्लास्टर एंड प्रेशर सोर्स। जब ये गांव में किसी को चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है बड़ा, तो वो जाते हैं ऐसे गांव वालों के पास कि हमें हमारी हड्डी टूट गई है, वो उनका प्लास्टर इतना टाइट बांध देते हैं कि वो हमारे पास आते हैं, पूरा उनका हाथ ब्लिस्टर से भरा हुआ, इतनी ज्यादा स्वेलिंग, और फिर उसके बाद हम, अगर पूरे हाथ पे ब्लिस्टर भी आए तो वी कैंट ऑपरेट, क्योंकि आप सॉफ्ट टिश्यू सही नहीं है उसका, तो हील होने में भी मुश्किल होगा। तो फिर वो सिर्फ एक सिंपल इस डिसीजन की वजह से उनको इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। मेनी टाइम्स कंपार्टमेंट सिंड्रोम सेट्स इन, अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम किसी ने विद इन 8 to 10 hours देखा नहीं, मतलब कैच नहीं करा, देन डेफिनेटली ही हैज टू लूज द लिम्ब। तो एक इतनी सी चीज की वजह से इतनी चीजें हो जाती है, मतलब यहाँ पे सिखाना भी चाहिए लोगों को, बट ये ऐसे देसट गावड़े मतलब वो तो रहेंगे ही, को कुछ। तो लेट कॉम्प्लिकेशंस में डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस सबसे कॉमनली कहाँ पे होता है? नेक ऑफ फीमर, गुड। और कौन सी आर्टरी? मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, फिर ग्रोथ डिस्टर्बेंस, बेड सोर्स, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, मसल कॉन्ट्रैक्चर, टेंडन लीजन्स, nerve compression and entrapment, joint instability, joint stiffness, complex regional pain syndrome, and osteoarthritis. Phew. Complications are pathophysiological conditions that could be associated with fractures which either coexist or originate due to the fracture. Either important to recognize earlier to save limb or life of the patient. Proper diagnosis and aggressive treatment is necessary to minimize disabilities. तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड में इमीडिएट, अर्ली और लेट होते हैं, जनरलाइज्ड में इमीडिएट, अर्ली होते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस आर दोज दैट अराइज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स फॉलोइंग इंजरी। तो लोकलाइज्ड में इमीडिएट इंजरीज आर मेजर इंजरीज टू द वेसल्स, नर्व इंजरीज, जॉइंट इंजरीज एंड विसरल ऑर्गन इंजरीज, जो हम पहले बताया, मैं बोल चुका एक बार। तो मोस्ट कॉमनली ये सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, इसमें ब्रेकियल आर्टरी और पॉप्लिटियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली डैमेज होती है। तो नर्व इंजरी 3 टाइप के होते हैं, न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है रेडियल नर्व एंड सियाटिक नर्व। तो शोल्डर डिसलोकेशन में आपकी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व नर्व होती है एक्सिलरी, शोल्डर एक्सिलरी, ह्यूमरस पे रेडियल, शाफ्ट ह्यूमरस पे रेडियल, सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस जो बीच में आएगा आपके जॉइंट के, मतलब बिल्कुल एल्बो, यहाँ पे रेडियल और मीडियन नर्व आपकी हो सकती है। मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियली यहाँ पे एपिकॉन्डाइल, यहाँ पे आपकी अल्नर नर्व इंजरी हो सकती है। और मोन्टेजिया फ्रैक्चर, यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व हो सकती है। और हिप डिसलोकेशन में सियाटिक नर्व इंजर होती है। ठीक है, विसरल इंजरी, ऑर्गन्स, ब्लैडर, बाउल, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इन्फेक्शन, ये सेकेंड स्टेज होती है लोकल कॉम्प्लिकेशंस की। फिर लेट कॉम्प्लिकेशन में डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन, अदर्स में एवीएन, शॉर्टनिंग, जॉइंट स्टिफनेस, सुडेक्स डिस्ट्रोफी, ये पहले भी लिखा हुआ था। फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये जरूरी है यार। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके
लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है, टिबिया का फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे जो कंपार्टमेंट होता है उसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आएगी। तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग जब आती है तो वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जो वेसल्स होते हैं वो सारी ओक्लूड हो जाती है वहाँ पे, तो ब्लड फ्लो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आपको फिर मतलब देखना ही होता है, और फिर ये ऐसे प्रोसेस है कि स्वेलिंग से ब्लड फ्लो रुक रहा है, ब्लड फ्लो वापस स्वेलिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्वेलिंग वापस ब्लड फ्लो को रोक रही है, तो ऐसे ही एक प्रोसेस चलता जाता है एंड गेट्स वर्स। तो इमीडिएटली आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है, और इसका सर्जिकली एक ही वो है ट्रीटमेंट कि आप जैसे इसका यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा हो, तो यहाँ पे एक इंसिजन दे दो, यहाँ पे एक इंसिजन दे दो, कंपार्टमेंट को फ्री करो और स्पेस दो। तो दिस इज कॉल्ड फेशियोटोमी, जो फेशिया को रिलीज कर देता है। ये कंपार्टमेंट ऑफ द लेग है। हाँ ठीक है। तो ये जो फेशिया है, ये जो एनक्लोज करती है कंपार्टमेंट्स को, अपन इसको फ्री कर देते हैं, तो फिर कंपार्टमेंट में जगह आ जाती है और जो वेसल्स होते हैं वो चलने लग जाते हैं। बट फिर भी ये आपको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना होता है डेली, एंड यू हैव टू ऑल्सो लुक एट द वुंड, क्योंकि उधर भी तो ओक्लूडेड है, तो उस वुंड को भी डेली इरिगेट करो, अच्छे से साफ करो। तो बहुत माथाफोड़ी है। Compartments most commonly involved are forearm and leg. Uh, Fracture of the arm or the leg can give rise to severe ischemia even if there is no damage to a major vessel. This can lead to reduce in the capillary flow. ये अगर कंपार्टमेंट आया तो प्लीज इंक्लूड दिस लाइन, ये रिड्यूस इन द कैपिलरी फ्लो ऑफ द वेसल्स। तो ये वही है कि ब्लीडिंग, एडिमा, इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल प्रेशर विद इन द ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट। 40 mm से ज़्यादा प्रेशर हो गया, उसमें कैपिलरी फ्लो डिक्रीज हुआ, मसल में इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, और एडिमा हुआ, और प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर इंक्रीज हुआ, कैपिलरी फ्लो और डिक्रीज हुआ, मसल इस्कीमिया हुआ, वापस और एडिमा हुआ। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि एवी ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। आफ्टर 12 आवर्स नेक्रोसिस ऑफ द नर्व, नर्व का भी नेक्रोसिस हो जाता है भाई, बट अच्छा नहीं। अगर 12 घंटे में नर्व का कुछ हुआ तो वो तो ठीक भी हो जाती है, पर अगर मसल का नेक्रोसिस हो गया 12 घंटे से ज्यादा, तो वो कोई भी सैल्वेज नहीं कर सकता। और ये वर्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर है, ये उसकी वजह से हुआ है, ये नॉन यूनियन की वजह से। तो कंपार्टमेंट में 5 चीजें होती है यार: पेन, पैरेस्थीसिया, पैलर, पल्सनेसनेस एंड पैरालिसिस। ये 5 लिख के आ जाना बस। पेन, पैरेस्थीसिया, पल्सनेसनेस, पैलर एंड पैरालिसिस। ठीक है। ट्रीटमेंट: स्ट्रिक्ट लिम्ब एलिवेशन और कास्ट हटाओ, और सारी ड्रेसिंग्स, कोई ड्रेसिंग कुछ नहीं, कास्ट हटाओ, खुला फ्रैक्चर रहेगा, और फेशियोटोमी कर दो, और फिर उसके बाद उसको देखो, फिर एक्सटर्नली फिक्सेट करो फ्रैक्चर को उसके पास लाओ, फिर फेशियोटोमी में ग्राफ्टिंग करवाओ प्लास्टिक सर्जरी वालों से, फिर उसके बाद उसको वापस बुलाओ, उसका एक्सटर्नल फिक्सेटर निकाल लो, फिर प्लेटिंग करो। तो ऐसे ही हैज टू अंडरगो 4 और 5 ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। तो ये एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देता है इस केस का। ये एक ट्रेन के नीचे लेडी आ गई थी पटियाला में। तो अगर आप अपने फोन पे सर्च भी करोगे कि पटियाला ट्रेन एक्सीडेंट, तो इस लड़की की वीडियो आ जाएगी ट्रेन के नीचे आते हुए की। तो ये मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी, और मैं सोच रहा कि मेरी 9 बजे ड्यूटी खत्म होगी, 8:30 बजे मुझे कॉल आया इमरजेंसी से कि ये पेशेंट आई है, और उसको मतलब ऑर्थो का कुछ नहीं है, उसमें उसमें प्लास्टिक सर्जरी में जानी हो पेशेंट, आप बस आ जाओ देख लो। मैं गया वहाँ पे, वो पेशेंट भी मेरे को कह रहा है कि हमारा पैर, मतलब मैं देखा उसका लिम्ब एम्पुटेटेड है, तो मैं बोला अच्छा ये क्या हुआ, तो वो कहता है पैर तो हमारा ठीक है, आप हमारे हाथ की प्लास्टिक सर्जरी कर दो, इसके लिए रेफर लेके आए हम। तो मैं बोला अच्छा। तो मैंने बोला कि एक बार मैं खोल के देखता हूँ। पहले मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने बोला है पटियाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम एम्पुटेशन करवा के आए हैं, तो पूरा ठीक है। तो मेरे को सामने से दिख रहा था कि ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी स्मेल आ रखी थी जैसे उन पेशेंट के पास गया था मैं। तो मैंने उनको बोला ठीक तो नहीं है, आप आए कैसे हो? तो वो ट्रेन से आई थी, वो पेशेंट यहाँ पे भी पटियाला से जयपुर, वो ट्रेन से आई थी एम्पुटेटेड लिम्ब के साथ। तो
मैंने उनको बोला अपने डॉक्टर से, उन्होंने मेरे को बोला वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनको कॉल करा और उनके फ़ोन से ही उसको बोला कि यहाँ पे आए हैं, इनकी लिम्ब की फ़ोटो भेजो मेरे को कि तुम क्या क्या एम्पुटेट करा है, क्या ड्रेसिंग करते हो। उसने मुझे उसकी हाथ की फ़ोटो भेज दी, उसके पैर की फ़ोटो उसने भेजी ही नहीं। और मैं भी फ़ोटो इसलिए मंगवा रहा था क्योंकि मेरे को खोलना नहीं था, इतनी बदबू मार रहा था यार। ऑब्वियसली मैं दूर भाग रहा था, आई बी ऑनेस्ट। तो अब थोड़ी ये ग्राफिक इमेज है, ये फोटो उसकी है, मेरे फोन से फोटो है। जैसे ही मैंने लिम खोला तो क्या देखा मुझे, तो अब मैं जूम कर पाऊँ तो ये देखो, ये उसके लिम खोलने आ लगा था, ये पट्टी वट्टी लग रखी हैं। और मैंने उस टाइम पे कैच भी नहीं करा था ये। पर अगर मैं और जूम करूँ या फिर जहाँ पे मेरा कर्सर है आप वहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक कीड़ा लगा हुआ है। तो अब फिर मेरा वैसा हो गया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इसमें मतलब अच्छे से इसको वॉश करा, एनएस से कम भी 10-15 लीटर एनएस डाले इसमें, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। और ये आप ऊपर से इसका देखो तो पूरा यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस सेट इन कर चुका है, पूरा इसका लिम्ब काला हो चुका है, कुछ भी और हो ही नहीं सकता था इसका। तो इन्होंने पटियाला में एक्सीडेंट हुआ, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो जाना पड़ता है। पर वहां से इन्होंने ये डिसीजन गलत लिया है कि वहां पे इन्होंने फर्दर ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यूड रखा, इस चक्कर में कि फ्री में हो रहा है, आयुष्मान कार्ड है, चलो फ्री में मुफ्त मजे। पर फिर यहाँ पे आके उनको ना पेशेंट को इतना ध्यान है कि उनके साथ क्या चल रहा है, ना डॉक्टर्स को उधर उतना फर्क पड़ रहा है। उनके पास भी 40-50 पेशेंट है, वो क्या करें। बट नेग्लिजेंस तो पेशेंट को ही झेलना पड़ रहा है ना। तो फिर उसके बाद उस पेशेंट को वापस से और ऊपर से एम्पुटेट करा। हमने प्लास्टिक सर्जरी से बात करी, एंड में पेशेंट का ऐसा हमने एम्पुटेट करके ये छोड़ा। फिर इसके ऊपर वैक्यूम ड्रेसिंग करवाई पेशेंट ने। अब पेशेंट को खर्चा कराने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसने वैक्यूम ड्रेसिंग कराई, दैट कॉस्ट 15,000 फॉर अ वीक। तो मैं उसको कहता कि तुम पहले करा लेते, पैर यहाँ से बच जाता। बट ठीक है, तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा।